Hello my dear friends, I am Professor Bayan Khan, and in today's video we are going to study the next type of phase diagram, that is partial eutectic system, or it is also known as partial eutectic phase diagram. Now such a kind of diagrams are obtained for the metals which are for the two metals which are completely miscible in liquid state. Now whenever I am saying miscible, it means they are not soluble in liquid state. Okay, like water and oil. When you mix water and oil, they form layers on one another. So like that, these metals, whenever they are mixed in a liquid state, they are miscible in their liquid state. Okay, but they are partially soluble in solid state. They are partially soluble in your solid state. That means some of the amount of this liquid is soluble in solid state. Say हमने 100 ग्राम मेटल A लिया है और 100 ग्राम मेटल B लिया है. ओके, सो 100 ग्राम की ये दोनों भी मिक्सचर में 100 प्लस 100 पूरा की पूरा soluble नहीं रहेगा. There will be some grams, there will be some amount, there will be some percentage which will be soluble in your solid state. जैसे कि मेटल A 100 ग्राम लिया है, तो मेटल A में से 10 ग्राम जो है वो soluble हो सकता है मेटल B में. उसी तरीके से मेटल B अगर हमने कंसीडर करें तो उसमें से 8 ग्राम जो है या 12 ग्राम है वो soluble हो सकता है मेटल A में. So this is called partial solubility. Okay. पार्शियल और कंप्लीट सॉल्युबिलिटी, ये जो है ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है. पार्शियली मतलब कुछ अमाउंट सॉल्युबल है, कंप्लीटली मतलब पूरा अमाउंट, कंप्लीटली सॉल्युबल मतलब पूरा अमाउंट सॉल्युबल है, और कंप्लीटली इनसॉल्युबल मतलब किसी भी तरीके से वो सॉल्युबल नहीं है. सॉल्युबल मतलब मिक्स होना, उसमें घुलना, उसमें डिसॉल्व होना. ओके, नाउ इफ यू सी द डायग्राम हियर, it is A and B mixture. We are considering this system for metal A and metal B. This is the original diagram of your partial eutectic system. This one is the diagram of silver and copper alloy. So silver and copper is an example. Silver copper system is an example of your partial eutectic system, and then there is some you can say the solid forms of your alloys. So the alloys which shows this kind of system, that is partial eutectic system, are silver and copper, lead, tin, aluminum, silicon, and there are some few more. Okay, so let us concentrate on this particular part. Now here A is on left side and B is on the right side. That means the percentage of B is increasing on the right hand side. So the amount of B is increasing on the right hand side. So if you consider this horizontal axis, or you can say x axis, so it shows weight percentage of B, and this one vertical axis or y axis shows your temperature in degree Celsius. Okay, now let's observe this diagram. This curve CEG, this V type curve is your liquidus curve. ये liquidus curve है because above this curve, above this line, the two metals which are present in the system are in liquid state. They are completely in liquid state. So that's why CEG is your liquidus curve, and below this CEG the metal starts to solidify, whatever the phase may be, but it starts to solidify below this line, and we see different phases in the diagram, in this phase diagram, with different percentages and different temperatures. So for a specific percentage, for a specific temperature, if you observe at any point, then we can see what is the phase present in this diagram.
For example, we'll come from top to bottom. This curve CEG is your liquidus curve. Below this metal is in solid, is starting to form solid. Now here the eutectic composition for this specific alloy is mentioned here. So say this is Ze. So this will be the percentage where these two metals will form eutectic alloy. Which alloy? Eutectic alloy, which is completely soluble in liquid and forms two different solids on solidification. Okay, so this will be H1 and H2, and that specific transformation will happen on this line, or you can say on this percentage. Okay, and this is the temperature and percentage point where this specific transformation is going to start. If you go through this percentage and temperature, then it is possible for us to form an eutectic alloy, that is alpha plus beta. Okay, now less than this percentage and greater than this percentage, the metals will not form any kind of you can say it will not form 100% eutectic alloy. There will be some changes in it. Now if you observe this CE curve, below this CE curve the amount of A is greater and the solid state of amount A is here mentioned, here is alpha. So the amount of alpha will be greater on this side, and the amount of beta, since beta is the solid state of metal B, beta will be greater on this right hand side. Now if you see these two specific curves, that is C, D, H and G, F, K. So this C, D, H and this G, F, K are called as solvus lines. इनको हम बोलते हैं solvus line, या सिर्फ अगर मैं DH अगर बोलूं और FK अगर बोलूं तो इनको बोलते हैं solvus line. Now why solvus line? Because in lines की लिमिट तक जो मेटल्स है वो एक दूसरे में कैसे है, सॉल्यूबल है. हम पार्शियल सॉल्यूबल सिस्टम की बात कर रहे हैं. दैट मींस कुछ ही अमाउंट सॉल्यूबल है और वो कुछ अमाउंट जो सॉल्यूबल है वो हम डिफाइन करते हैं इन दो लाइंस. सो दिस इज द पॉइंट डी जो पॉइंट है, इट इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी. ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बताता है ऑफ बी इन ए. मतलब इस साइड में ए ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर बी ऐड कर रहे हैं. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी दैट इज सॉल्युबल in A is given by point D, and the maximum amount of A which is soluble in B is given by point F. So F is max solubility of A in B. A की B में और B की A में solubility हम डिफाइन कर रहे हैं दो पॉइंट से. So D ये हमको बताता है कि that is the amount that B इतना सॉल्युबल है A में, और S हमको बताता है A B में इतना अमाउंट सॉल्युबल है. अभी इतना अमाउंट जब मैं बोलता हूँ तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ परसेंटेज मिल जाएगा. C यहाँ पर मुझे मिलेगा dx, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसी तरीके से करता हूँ तो मुझे मिलेगा fx. तो ये dx जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ B which is soluble in A, and that too वो भी कहां पर, at this specific temperature. Say this is my Tx temperature. ये Tx temperature है, तो इस Tx temperature में मैक्सिमम solubility जो दिखेगी मुझे that will be at D and at F. Okay, so as the temperature goes on decreasing, जैसे जैसे temperature कम होता जा रहा है आप देखोगे कि ये जो point है it is shifting towards right hand side and this is shifting towards left hand side. That means जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. ओके, सो F से Fx 10 है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा स्पेसिफिक तो ये समझ लो मैंने इसको Fx1 दिया नाम. सो Fx1 विल बी लेस देन द Fx, मतलब ये 8 रहेगा, 6 रहेगा, व्हाटएवर इट मे बी, एंड सबसे कम जो रहेगा दैट विल बी एट पॉइंट K. ओके, और इधर जो सबसे कम रहेगा दैट विल बी पॉइंट H. Okay, now whatever solid
is formed before this point E. Okay, if you go with this specific composition, अगर इस composition में जाते हैं आप इतने परसेंटेज तक अगर आप सॉलिड बनाते हैं तो जो भी सॉलिड बनेगा उसमें आपको अल्फा प्लस यूटेक्टिक फेज देखने मिलेगी। कौन सी फेज देखने मिलेगी? अल्फा और यूटेक्टिक। अल्फा किसका सॉलिड स्टेट है? इट इज सॉलिड स्टेट ऑफ ए। कौन सा सॉलिड स्टेट है? सो इट इज प्रो यूटेक्टिक। वो कौन सा है? प्रो यूटेक्टिक है। उसी तरीके से इधर के साइड में अगर मैं इस कंपोजिशन पे अगर देखूं, ई से अगर ज्यादा कंपोजिशन अगर मैं लूं इस स्पेसिफिक रीजन में, तो मुझे जो सॉलिड मिलेगा दैट विल बी यूटेक्टिक अलॉय, दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रो यूटेक्टिक बीटा। बीटा का प्रो यूटेक्टिक फॉर्म मुझे वहां पर देखने मिलेगा। सो नाउ लेट अस कम टू दिस डायग्राम। इस डायग्राम की तरफ हम आते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिल्वर एंड कॉपर सिस्टम। इस डायरेक्शन में कॉपर का अमाउंट बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में सिल्वर का अमाउंट ज्यादा है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम टेम्परेचर देख रहे हैं इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर भी कुछ मेंशन किए हैं, 800, 900, 1000, 1100। सो दिस इज द पॉइंट वेयर सिल्वर मेल्ट्स, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट 103 वेयर कॉपर मेल्ट्स। ओके, नाउ इसी तरीके का सिस्टम है, सिमिलर सिस्टम है, थोड़ा सा डायग्राम में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ओके, सो ये जो लाइन है ऊपर वाली से, इसको मैं नाम देता हूं ए ई सी। सो ये ए ई सी जो लाइन है ये हमारी लिक्विडस लाइन है। इसके ऊपर मेटल कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ओके, और इसके नीचे जो भी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में हमको देखने मिल रहा है। लिक्विड प्लस सॉलिड भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज your liquid, okay, solid, sorry. Now let us consider this point E. This is your eutectic point again. I am saying this, it is your eutectic point. अब इस eutectic point में हमारा जो composition है, eutectic composition जो है for the silver copper system is specifically 28.1%. अगर आपके सिल्वर कॉपर में सिल्वर में अगर आप 28.1% कॉपर अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको यूटेक्टिक अलॉय देखने मिलेगा। यूटेक्टिक अलॉय मतलब जो लेयर्स के फॉर्म में है, एक दूसरे के ऊपर उसकी लेयर्स रहेंगी। सो दिस इज योर 28.1%। अब इससे कोई भी नीचे का परसेंटेज में हमको वहां पर अल्फा देखने मिलेगा। अल्फा क्या रहेगा? सिल्वर का प्रो यूटेक्टिक फॉर्म, और यूटेक्टिक अलॉय देखने मिलेगा। यूटेक्टिक क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा। ओके, जब भी मैं यूटेक्टिक बोल रहा हूं दैट इज मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। दो सॉलिड हमको वहां पर देखने मिल रहे हैं, सॉलिड 1 सॉलिड 2 इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर्स। तो सिल्वर की एक लेयर, कॉपर की एक लेयर, सिल्वर की एक लेयर, कॉपर की एक लेयर। सो लाइक दैट दिस विल बी योर यूटेक्टिक अलॉय व्हिच विल बी प्रेजेंट एट द स्पेसिफिक composition. Now let us come little on left hand side. ये जो दूसरी लाइन है, this is line number 2. So this second number line is starting from point 1 and is completing at point 4. Okay. So this is for our study. ये जो दो लाइन लिखा है number 2 line, this is having some specific composition that is your 20% of copper. इसमें क्या है? 20% कॉपर यूज कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में 1 to 2 जो रहेगा that will be your liquid state, completely liquid रहेगा। 2 to 3 will be your alpha plus liquid, alpha plus liquid, okay, that means alpha आपका pro eutectic alpha and L मतलब आपका liquid, and from 3 to 4 it will be in the form of alpha plus eutectic मतलब alpha का solid, अल्फा आपका प्रो यूटेक्टिक सॉलिड और यूटेक्टिक जो है अलॉय वो भी वहां पर प्रेजेंट रहेगा। दैट विल बी योर अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे ओवरऑल टोटल जो फेज रहेगी यहाँ पर दैट विल बी योर अल्फा, और आई राइट प्रो अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और ये जो बीटा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लेयर्स के फॉर्म में है, और ये प्रो अल्फा जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ योर पार्टिकल्स और से डेंड्राइट्स, इसके वो फॉर्म में हमको वहां पर नजर आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ लेट अस कम टू दिस 6% कंपोजिशन। अब
ये जो लाइन है इट इज फॉर 6% कंपोजिशन. So for 6% composition 1 to 2 is again your liquid, 2 to 3 is your alpha. Okay, 2 to 3 is your 2 to 3 is your alpha plus liquid, 3 to 4 is your pure alpha, and this 0.5 4 to 5 is again alpha plus eutectic. Alpha plus eutectic. Whenever I am saying alpha plus eutectic, it means alpha, pro alpha plus alpha plus beta. So तीन phases हमको वहाँ पर देखने मिल रही है. Okay, so this is for 6% composition. Okay. और राइट साइड में since copper is more, copper का परसेंटेज ज्यादा है, that's why we'll see beta phase more on the right hand side. अगर हमने इस साइड में भी अगर हमने इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करके स्टडी किया, तो 1 से 2 हमारा लिक्विड रहेगा, 2 से 3 लिक्विड प्लस बीटा है, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी लिक्विड प्लस बीटा, मतलब बीटा का प्रो स्टेज दिखेगा, एंड फ्रॉम दिस 3 to 4 you will be having eutectic plus beta, मतलब क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रो बीटा. Okay, now let us see how the microstructure will appear in the microscope. So if you pay attention on this first diagram, this is the eutectic alloy that we are going to obtain with this 28.1%. मतलब जब हम 28.1% कॉपर का इस्तेमाल करके अलॉय बनाएंगे, तब आपको इस तरीके से सिर्फ यूटेक्टिक अलॉय देखने मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा के लेयर्स. ओके, अगर मैं 6% जो है ये वाला लाइन 6% कॉपर लेके अगर अलॉय बनाऊं, तो मुझे कुछ इस तरीके से माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस नजर आएंगे. पहला वाला माइक्रोस्ट्रक्चर, पहले तो लिक्विड रहेगा इस तरीके से, यहाँ पर लिक्विड्स दिख रहे हैं डॉट. सो लिक्विड रहेगा, लिक्विड का बाद में सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन में हमको अल्फा के ग्रेन्स दिखने शुरू होंगे, दैट इज योर प्रो अल्फा जिसको हम बोल रहे हैं. ओके, ये देखने मिलेंगे, अल्फा के ग्रेन्स देखने मिलेंगे. देन उससे और आप सॉलिडिफाई करो तो दिस सेकंड डायग्राम विल अपीयर इन द माइक्रोस्कोप. सो इट विल बी हैविंग अल्फा ग्रेन, और अल्फा ग्रेन के बॉर्डर्स पर हमको बीटा ग्रेन भी देखने मिलेंगे. There will be layers of beta grain around the grain of alpha. Alpha का अगर एक आधा बॉल अगर मैं बोलूँ, एक आधा स्फीयर अगर मैं बोलूँ कि अल्फा एक स्फीयर के फॉर्म में है, तो इस स्फीयर के ऊपर एक आधा प्लास्टिक का कवरिंग, एक आधा वाटर का कवरिंग, एक आधा लेयर जो रहेगा, that will be the layer of beta. Okay, so that will be your beta grain on the boundaries. और आप उसको solidify करेंगे, so it will get converted into beta grain particles. वो जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से वो बीटा ग्रेन के होंगे सेपरेट हो जाएंगे, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पॉट्स हमको नजर आएंगे हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर में. सो इट विल लुक लाइक दिस, एंड फॉर दिस 20% कॉपर कंपोजिशन हमको जो स्ट्रक्चर देखने मिलेगा इट विल बी लाइक दिस. सो जैसे हमारा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में से अल्फा प्रो यूटेक्टिक के ग्रेन्स या डेंड्राइट्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दे विल सॉलिडिफाई. सो इस तरीके से डेंड्राइट्स उसके हमको नजर आएंगे. ऑन फर्दर सॉलिडिफिकेशन द प्रेजेंस ऑफ प्रो यूटेक्टिक अल्फा विल बी देयर, वो जैसे कि वैसे वहां पर रहेंगे, बट अलोंग विद दैट अल्फा प्लस बीटा यूटेक्टिक कंपोजिशन इज स्टार्टिंग. सो दिस इज योर अल्फा प्रो यूटेक्टिक अल्फा प्लस यूटेक्टिक, दैट इज योर अल्फा प्लस बीटा के लेयर्स दिखना शुरू होंगे. और फर्दर सॉलिडिफिकेशन में जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी कंप्लीट लेयर्स बन जाएंगी. साथ ही साथ में हमारा अल्फा जो है प्रो यूटेक्टिक अल्फा, वो भी डेंड्राइट्स के फॉर्म में रहेगा, और उस डेंड्राइट्स के अंदर हमको बीटा के पार्टिकल्स भी नजर आएंगे. सो कुछ इस तरीके से हमारा पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम रहता है. इसके बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे हमारे माइक्रोस्ट्रक्चर्स है, ये स्पेसिफिक डायग्राम है, इस माइक्रोस्ट्रक्चर में भी आज स्पेसिफिक डायग्राम भी पूछी जा सकती है. सो ये अच्छे से स्टडी कीजिए, एंड आई होप यू आर सेफ एट योर होम. प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.